Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about the marriage and the different types of marriage. دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شادی اور ان کی جو مختلف اقسام ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور شادی کو کن کن مطلب بنیادوں پر کی جاتی ہے ڈیفرنٹ مذاہب میں. آج میں آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو. سب سے پہلے میرج کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. It is a social contract and legal relationship between two or more than two individuals of the same or opposite genders, usually involving economic cooperation, sexual activity and childbearing. دوستوں شادی کیا ہے؟ شادی ایک کانٹریکٹ ہے، لیگل کانٹریکٹ ہے دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان. یہ بندے سیم جینڈر کے بھی ہو سکتے ہیں اور اپوزٹ جینڈر کے بھی ہو سکتے ہیں. یوزولی انوالونگ اکنامک کوآپریشن، سیکشول ایکٹیویٹی اینڈ چائلڈ برننگ. دوستوں اب میرج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سوشل گروپ، نمبر آف اسپاؤسز، لوکیشن اینڈ ریزیڈنسی. سب سے پہلے جو سوشل گروپ ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کو نمبر آف اسپاؤسز کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. لوکیشن اور ریزیڈنسی ان کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. لیکن اب پہلے سوشل گروپ کی طرف آتے ہیں. سوشل گروپ کے 2 اقسام ہیں: انڈوگیمی اور ایکزوگیمی. Endogamy means marriage in own society, village, family, religion, country, etc. دوستو دنیا میں بعض لڑکے یا لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی سوسائٹی، اپنی ویلیج، اپنی فیملی، اپنی ریلیجن، اپنی کنٹری ایکسیٹرا مطلب ان کے باہر شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ اپنی ویلیج یا اپنی فیملی کے باہر شادی کو مطلب اپنی توہین سمجھتی ہیں، برا مانتی ہیں. اسی طرح ایکزوگیمی مینس میرج آؤٹ آف کنٹری، ویلیج، ریلیجن، سوسائٹی ایکسیٹرا. دوستو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ملک میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کنٹری میں، اور بعض لڑکے لڑکیاں اپنی ویلیج میں. یہ ریلیجن یہ تو بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے ضرور. اپنی سوسائٹی میں شادی نہیں کرنا چاہتی. دوستو انڈوگیمی مینس میرج ان اون سوسائٹی، ویلیج، فیملی، ریلیجن. اور ایکزوگیمی میرج آؤٹ آف کنٹری، ویلیج، ریلیجن، سوسائٹی ایکسیٹرا. دوستو امید ہے آپ لوگوں کو سوشل گروپ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ان کی جو اقسام ہیں انڈوگیمی اور ایکزوگیمی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ بے شک کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں نمبر آف اسپاؤسز. اب نمبر آف اسپاؤسز کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مونوگیمی اور پولیگیمی. مونوگیمی means the marriage which consists of 2 persons. دوستوں جو مونوگیمی ہوتے ہیں ان میں 2 بندے شامل ہوتے ہیں. یہ جو مونوگیمی کا جو میرج ہوتا ہے یہ 2 بندوں پر مشتمل ہوتا ہے. اب مونوگیمی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مونوگیمی کو سمجھنے کے لیے اب ان کی جو 2 اقسام ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مختلف مذاہب، مختلف ممالک کی جو لاز ہیں ان کے مطابق. ہوموگیمی اور ہیٹروگیمی. دوستوں مونوگیمی کو جو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے وہ ہے ہوموگینی اور ہیٹروگیمی. ہوموگیمی means marriage with same gender.
दोस्तों अक्सर ममालिक में, मज़ाहिब तो नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर ममालिक में, अक्सर बाज़ ममालिक में अब सेम जेंडर से शादी करने की लीगल जो परमिशन है वो दी गई है। अब तो इंडिया में भी इनकी इजाज़त दी गई है। मेरी विद सेम जेंडर मतलब एक लड़का लड़के से शादी कर सकता है और एक लड़की लड़की से शादी कर सकती है। लेकिन अक्सर मज़ाहिब की नज़र में ये एक लानत है, ये एक लानत है। अब हेटेरोगैमी की तरफ आते हैं, मैरी विद अपोजिट जेंडर्स। दोस्तों अक्सर मज़ाहिब जो है वो अपोजिट जेंडर से शादी करने की तलकीन देती हैं। ये होमोगेमी की एक मैं आप लोगों को इनको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दोस्तों एग्ज़ाम्पल ये है कि अक्सर हम जब जानवरों को भी देखते हैं तो वो अपोजिट जेंडर से मतलब अपना काम करते हैं। लेकिन आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में भी एक मर्द जानवर को, एक गधे को भी गधे पर चढ़ते हुए नहीं देखा है। लेकिन आज इंसान इतना गिर चुका है कि वो जानवरों से भी बदतर है। मतलब जानवर जो काम नहीं करते वो आज अशरफुल मखलूक़ात इंसान ने शुरू कर दिया है। अब आते हैं पोलीगैमी की तरफ। पोलीगैमी, द मैरिज which consists of three or more than three person। दोस्तों बाज़ मज़ाहिब में दो से ज़्यादा बंदे भी आपस में शादी कर सकते हैं। अब पोलीगैमी जो है वो ये फर्दर डिवाइड कर दिया गया है 3 हिस्सों में, पोलीगैनी, पॉलीएंड्री और ग्रुप मैरिज। अब आते हैं पोलीगैनी की तरफ। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका सीखना। In polygamy, a single man can marry with 2 or more than 2 women। दोस्तों अक्सर मज़ाहिब जो है वो पोलीगैमी की तलकीन देते हैं। मतलब एक बंदा मतलब मर्द मतलब एक से ज़्यादा औरतों से शादी कर सकता है। ये मर्द के निशान है और ये औरतों की साइन है, सिंबल है। अब पॉलीएंड्री की तरफ आते हैं। In polyandry, a single woman can marry with 2 or more than 2 men। दोस्तों ये जो मैरिज है इसमें एक औरत होती है और ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा मर्द होते हैं। दोस्तों ये भी अक्सर मज़ाहिब में इल्लीगल है, मतलब गुनाह है। दोस्तों इस इंडिया में मतलब बरसागीर में ये जो लानती ये पृथ्वी के दौर में शुरू हुई थी, जब इसने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पहली जंग में हराया तो इसके कई महीने या साल बाद ये जो लानती ये शुरू हो गई। लेकिन इसकी वजह से और जो पृथ्वी की माँ थी वो बहुत ही ज़हीन औरत थी, उसने कुछ एडवाइसेस अपने बेटे को दिए थे लेकिन उसने उसको टकराया था। इसलिए उनको दूसरी जंग में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ख़िलाफ़ सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसे अपनी जो सल्तनत थी उसे हाथ धोने पड़े। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पॉलीएंड्री की समझ आ गई होगी। अब ग्रुप मैरिज की तरफ आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड। दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब पता नहीं ये कौन कौन से ममालिक में है, लेकिन ये एक लानत है हर मज़हब की नज़र में। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड। दोस्तों इसमें एक दो बंदों की बात नहीं होती, इसमें ग्रुप होता है। मतलब 12
इसमें 12 पर्सन होते हैं, 6 मर्द होते हैं, 6 औरतें होती हैं। अब इनके दरमियान ये नहीं होता कि इसके एक दो बंदों के दरमियान, मतलब एक औरत एक मर्द के दरमियान ही ताल्लुक़ होगा, बल्कि इन 6 जो 12 जो बंदे होते हैं, इनकी मर्ज़ी है कि किसके साथ ये रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन रखे, मतलब टाइम बाय टाइम इसकी रिलेशन चेंज होती है, दिन ब दिन इन 6 बंदों के दरमियान जो ताल्लुक़ होती है वो ये चेंज होती रहते हैं। मतलब आज 2 के दरमियान है, कल उन दोनों का किसी और 2 से ताल्लुक़ होता है। मतलब ये जो ग्रुप होता है ये बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस लड़की और लड़की को भी के साथ भी रिलेशन रखना हो, मर्द रख सकता है और लड़की भी किसी भी इन 6 बंदों में से ताल्लुक़ रख सकता है ये। लेकिन ये ग्रुप मैंने तो वैसे ही एग्जांपल के तौर पर 6 ले लिए, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 12 से कम भी हो सकते हैं। अब लोकेशन और रेजिडेंसी की तरफ आते हैं। लोकेशन और रेजिडेंसी से पहले मैं आप लोगों को एक और भी ग्रुप का जो मैरिज का किस्म है वो भी बताना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। अब रिसेंटली इंडिया में एक वाक़या हुआ था जब एक लड़की ने एक कुत्ते से शादी की थी। दोस्तों ये भी एक शादी के एक किस्म में आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं लोकेशन और रेजिडेंसी की तरफ। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। दोस्तों लोकेशन और रेजिडेंस इनको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पेट्रीलोकेलिटी, मैट्रीलोकेलिटी एंड न्यू लोकेलिटी। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, नेम तो थोड़े मुश्किल है, लेकिन इनका मतलब इनका सीखना बहुत ही आसान है। पेट्रीलोकेलिटी की तरफ आते हैं। Patriloquality in this type of marriage, after marrying a girl has to go husband's house. दोस्तों इस किस्म की शादी में जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो लड़की को हस्बैंड के घर जाना पड़ता है। ये अक्सर होता है, मतलब हर कंट्री हर मज़हब में तकरीबन होता है। अब मैट्रीलोकेलिटी की तरफ आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ हस्बैंड हैज़ टू गो वाइफ्स हाउस। इस किस्म में इस शादी के इस किस्म में जब 2 बंदे आपस में शादी करते हैं तो हस्बैंड को वाइफ के घर जाना पड़ता है, मतलब घर जमाई बनना पड़ता है, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है। अब न्यू लोकेलिटी की तरफ आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ टू शिफ्ट न्यू हाउस। दोस्तों इस किस्म में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के वालिदैन के घर नहीं जाते, मतलब वाइफ हस्बैंड के घर नहीं जाती और हस्बैंड वाइफ के घर नहीं जाता, बल्कि ये अपने लिए नया मकान बना लेते हैं शादी से पहले, और जब शादी करते हैं तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब न्यू हाउस में शिफ्ट होते हैं, वो एक दूसरे के घर नहीं जाते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।